presentation mode. Is my screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Definition of resistivity or specific resistance. Okay. So what do you mean by resistivity? Let's try to understand what is resistivity or specific resistance. Here in this yellow box, you can see a square. Are you able to see the square? Yes, sir. Yes. Cube. Yes. There is a square box of dimensions 1 meter. Its length is 1 meter, its width is 1 meter, and its height is also 1 meter. Okay. So we know that resistance is equal to rho L upon A, और rho equals, इसको देखिए rho क्या हो जाएगा, if we keep the rho this side and we transpose L upon A towards left side, then what will happen? Rho equals R dot A upon L. What is formula for specific resistance? Resistance of conductor into area of cross section upon length. So if the area of a conductor is 1 meter square, अब आपको ये क्यूब दिख रहा है, इस क्यूब का एक फेस 1 meter into 1 meter equals 1 meter square. So the area of cross section of this cubical conductor is 1 meter square and length is 1 meter. This length is 1 meter and area of one face will be 1 meter square. Then rho equals R. What does this mean? The resistivity of a conductor can be defined as the resistance of the conductor of unit length and unit area of cross section. So if the length of the conductor is 1 meter and area of cross section of the conductor is 1 meter square, then the resistance of the conductor is equal to its resistivity. Okay. So what is resistivity of a conductor? If the conductor is a cubical conductor of dimensions 1 meter, then the resistivity will be equal to its resistance. Resistance of conductor of dimensions 1 meter and area cross section 1 meter square equals its resistivity. In other words, we can say the resistivity of a material is defined as the resistance offered by a cube of material of size 1 meter and current flow when current flows perpendicular to opposite faces of the cube. Understood? Any doubt in this definition? सर ये जो इन अदर वर्ड्स वाला है उसकी लास्ट की 3 लाइन क्या बोल रही हैं? ये एक क्यूब है, देखो, ठीक है। क्यूब का मतलब क्या है? उसके सभी डायमेंशंस कितने होंगे? इक्वल होंगे। सपोज इट इज ऑफ 1 मीटर, देन the resistivity of material is defined as the resistance offered by the cube of material of sides 1 meter. ये जो क्यूब है, एक फेस, ये देखिए एरो गया हुआ है, जब ये एरो फर्स्ट फेस को क्रॉस करेगा तो एरिया कितना उसको फेस करनी पड़ेगी? 1 मीटर स्क्वायर एरिया। और कितनी लेंथ ट्रेवल कर रहा है क्यूब इस बॉक्स के अंदर? 1 मीटर। So when the area of cross section of conductor is 1 meter square and its length is 1 meter, then the resistance offered by the cube will be equal to its resistivity. Resistivity of material is defined as the resistance offered by a cube of the material of size 1 meter when current flows perpendicular to opposite faces of the cube. Here one thing must be kept in mind. The direction of current must be परपेंडिकुलर टू टू अपोजिट फेसेस। जैसे इसका लेफ्ट फेस जो है और ये राइट फेस है, तो करंट कहाँ फ्लो कर रही है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जो एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो क्या है? दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो करंट इज फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द टू अपोजिट फेसेस ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 1 मीटर। सो सर तो परपेंडिकुलर ही क्यों है? हाँ, परपेंडिकुलर ही क्यों है? करंट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होगा तो लेंथ विल बी मोर देन 1 मीटर। इफ सपोज इट इज मूविंग डायगोनली, ठीक है, देन द लेंथ विल नॉट बी इक्वल टू 1 मीटर। इफ द लेंथ इज नॉट 1 मीटर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल नॉट बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। गॉट इट? ओके, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। सर We can define कोई resistivity. पी बोला है क्या? क्या?
रेजिस्टिविटी को ही P बोला है क्या? रेसिस्टिविटी दो है वो रो है क्रॉस सेक्शन रेसिस्टेंस एरिया। हाँ, resistivity is represented by rho, resistance is represented by R. R and rho becomes equal when area cross section is 1 meter square and length is 1 meter. Now resistivity can also be defined for a cylindrical conductor. Suppose there is a cylindrical conductor as shown in the PPT. Can you see that this? There is a cylindrical conductor, blue shade, and its area cross section is circular area pi r square. कितना आ रहा है इसका? 1 meter square. And the length of this cylindrical wire is 1 meter. For defining resistivity, it is compulsory that area must be 1 meter square and length must be 1 meter. So for such a cylindrical wire, we can define the resistivity of a material is also defined as the resistance offered by cylindrical conductor of the material of area of cross section 1 meter square and 1 meter length when current flows perpendicular to opposite faces of the cylinder. जैसे क्यूब में हो रहा था कि एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर चाहिए, लेंथ 1 मीटर चाहिए. Similarly, in cylindrical conductor also we need area of cross section 1 meter square and length of the conductor 1 meter. If this situation is fulfilled, if this condition is fulfilled, then the resistance offered in the path of flow of electric current will be equal to the resistivity of the material. Clear? Yes, sir. So what is unit of resistivity? We can simply derive the unit of resistivity by using its formula. We know that rho equals RA upon L. Okay? Rho equals RA upon L. Now put the units of R, put the units of area A, and put the units of L. You will easily find the unit of resistivity. So unit of resistivity equals R की unit क्या हो गई? Ohm. Area की unit क्या हो गई? Meter square. L की unit क्या हो गई? Meter. Now meter square upon meter will give only meter. So unit of resistivity will be ohm meter. There, in this way we can derive the unit of resistivity. So finally क्या हो जाएगा? The unit of resistivity is ohm meter. Now temperature coefficient of resistivity फिर से आ गया. The resistivity of a material changes with temperature. वहां पे क्या था? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस. यहाँ पे अब रेसिस्टिविटी भी आ रहा है. How resistivity depends upon temperature. If ρ1 and ρ2 are the values of resistivity of a material at temperature say T1 and T2 respectively, then the temperature coefficient of resistivity is defined as, ठीक है. Now see, alpha equals ρ2 minus ρ1 upon ρ1 T2 minus T1. अब ρ2 minus ρ1 equals alpha T2 minus T1 ρ1 T2 minus T1 को उस साइड ले जाओ, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? ρ2 minus ρ1 equals alpha ρ1 T2 minus T1 और ρ2 equals ρ2 क्या? हाँ जी सर वो अल्फा टेम्परेचर है क्या? अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी. टेम्परेचर क्या है? T2 एंड T1. टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि हाउ मच द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. इट्स अ मेजरमेंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी. टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है उसको मेजर करते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी पे. ठीक है. यस. हमने 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, किसी भी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी कितनी चेंज हो जाएगी उसका जो मेजर होगा, जो वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी. ठीक है. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. ठीक है. तो अल्फा इक्वल्स क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T2 माइनस रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1. ठीक है. अपॉन रेसिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर सब्सटेंस एट टेम्परेचर T1 और ब्रैकेट में T2 माइनस T1. ट्रांसपोजिंग करेंगे, इट विल गिव ρ2 माइनस ρ1 इक्वल्स अल्फा ρ1 T2 माइनस T1. और इसके बाद
अब अगर हम इसको फिर से इनमें से कॉमन लेके अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रो टू को रखो और इस साइड क्या हो जाएगा, रो वन, ये माइनस रो वन है, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो रो वन 1/1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. This is the final equation for determining the resistivity of a conductor at different temperatures. ठीक है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट रह गया, उसको बना सकते हैं. तो जो पहले इक्वेशन हमने पढ़ा था वही इक्वेशन देखिए यहाँ पे इस तरह से डिराइव हो गई है. नाउ ये भी आपके कोर्स में ज्यादा डिटेल में इलेबोरेट नहीं है, इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. आपसे सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो बोर्ड में 10th लेवल से जो पूछते हैं कि हाउ द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. तो आप हमको सिर्फ क्या लिखना है, द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है. नाउ Yes. what is the unit of temperature coefficient of resistivity per degree Celsius और डिग्री सेल्सियस इनवर्स. तो ये कैसे? डेफिनेशन समझ में आ गई आपको रेसिस्टिविटी की. सर इसकी यूनिट ये कैसे हो गई? अब इसमें देखो अल्फा बचा है, ये रेसिस्टिविटी है, इस रेसिस्टिविटी को इधर ले जाओगे आप, ये इसको आप ट्रांसपोज करके सॉल्व करो तो T2 माइनस T2 की यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस. क्योंकि T2 भी डिग्री सेल्सियस होगा माइनस ये भी डिग्री सेल्सियस होगा, तो डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस विल रिमेन डिग्री सेल्सियस, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी. ठीक है. अल्फा को आप यहीं छोड़ दो, 1 की कोई यूनिट होती नहीं है. अब यहाँ पे रो 1 है, रो 1 को ट्रांसपोज करके इस लेफ्ट साइड में ले जाओ, क्या हो जाएगा, रो 2 अपॉन रो 1. रो 1 कैंसिल आउट, उनकी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी. अब अल्फा T2 माइनस T1 है, अल्फा इधर है, T2 माइनस T1 को आप लेफ्ट साइड में ले जाओ, क्या हो जाएगा, आ गया. डिग्री सेल्सियस नीचे आएगा, और डिग्री सेल्सियस नीचे आएगा मतलब यूनिट विल बी डिग्री सेल्सियस इनवर्स. स्नेहा अंडरस्टूड? हाँ. स्नेहा हैव यू गॉट दिस? यस सर. Okay. So let's proceed to next slide. Now, how can classify materials on the basis of resistivity? आपने 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं. ठीक है. So according to those definitions, what are conductors? Conductors are those सर, ये materials कितना बड़ा which allow chapter electric है? current to pass through them. What are? ये अभी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अभी चैप्टर की बिगनिंग है इसकी. ठीक है. एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, मैं एनसीईआरटी में कुछ रहा हूं. ठीक है. आई एम गिविंग यू द कंप्लीट चैप्टर अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड. ठीक है. नाउ इंसुलेटर्स हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स which do not allow electric current to pass through them, but in practice there are no any such material which 100% do not allow electric current to pass through them. Every material, whether it is plastic or wood, to some extent they allow electric current to pass through them. Then how to decide which one will be conductor and which one will be insulator? For that we have to see the value of its resistivity. Depending upon the different values of resistivity, we can classify materials into conductors, semiconductors, and insulators. So what are conductors? Materials whose resistivity is very small and of the order 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter are called conductors. ऐसे सभी materials जिनकी resistivity कितनी होती है, 10 to the power minus 8 ohm meter से 10 to the power minus 6 ohm meter के बीच होती है, they all are called as conductors. Example: copper, silver, aluminium. सर. Now note, in case of alloys like सर, आपने बोला रेजिस्टिविटी का मतलब है कि 1 मीटर एरिया और 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो फिर आर पी के इक्वल हो जाएगा, ऐसा. तो ये चीज कंडक्टर में कम है, मतलब कि थोड़ा क्या है? जिस मटेरियल में ये रेसिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है, कितनी होती है, 10 माइनस ओम मीटर, वो कंडक्टर है. रेसिस्टिविटी बहुत कम हो गई, इसका मतलब रेसिस्टेंस कम हो जाएगा. रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट.
large amount of current will start flowing through. Therefore, it is called conductor. ओके, सो रेजिस्टर एरिया या फिर रो में लेंथ आओ। पे डिपेंड करेगा क्या? रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करते ही है। ग्रेटर द लेंथ ग्रेटर इज द तो अगर हमने रेसिस्टेंस। बहुत बड़ा कंडक्टर कुछ बना दिया तो फिर रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जितना लेंथ बढ़ाएंगे उतनी रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये छोटे के लिए ही है बस। ठीक है, वो छोटे बड़े से मतलब नहीं है। रेसिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, वो रेसिस्टिविटी कैसे निकालते हैं, जब हम 1 मीटर लेंथ का एक वायर ले लें और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उसका जितना रेसिस्टेंस आएगी वही उसकी रेसिस्टिविटी होगी। अब उससे ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन रेसिस्टिविटी। मान लो 1 मीटर की जगह आपने 10 मीटर ले लिया, रेसिस्टेंस विल बी मोर, रेसिस्टेंस विल बी मच लार्जर देन दैट ऑफ इट्स रेसिस्टिविटी। क्लियर? यस सर। हेलो, यस सर। तो ये कंडक्टर की डेफिनेशन समझ में आई आपको? हम्म। All those materials whose resistivity ranges between 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 power minus 6 ohm meter are called conductors. Examples: copper, silver, aluminum, etc. Now note. सर in case of- रेजिस्टेंस से इलेक्ट्रिसिटी का क्या था? सर कम रेजिस्टेंस होने से क्या question? इलेक्ट्रिसिटी क्यों इंक्रीज होगी, करंट क्यों इंक्रीज होगी? वाह, वेरी गुड। क्या क्वेश्चन पूछे, किसने यही नहीं पूछा? पता। वाह यार, सृष्टि अच्छा, रंजन। सृष्टि, सर मेरा Okay, डिस्कनेक्ट हो गया था अभी अभी तो यार। बताया नहीं है सर ने ऐसा कुछ। भाई छुट्टियों के पहले ही बता दिया। ठीक है। and no talk among yourself. ठीक है? Keep your mic muted. This class is recorded and it will be placed on in YouTube. So, avoid unnecessary talk in the class. मजा ठीक कैसे है? आएगा फिर? Now listen. If you are moving to a Sarafa market, now listen. If you are, suppose you are the electric current and you are moving in Sarafa market. If there is huge crowd, will you be able to move fast or slow? नो नो No, नहीं, slow और fast. स्लो। आप सराफा स्लो, so same is the situation here also. When resistance मतलब opposition, obstacles. When obstacle is समझ more, गई सर। electric सर current का will be एग्जाम्पल slowly. दिया है। समझ गई। Good, wonderful. सर Great. अभी मेरा एक डाउट। ठीक है, now I think your concept is clear. सर वो अभी अभी कनेक्ट हुआ इसलिए समझ नहीं आया था। सर ये बताइए कि इसमें लिखा है एग्जाम्पल, अब आगे समझिए। एग्जाम्पल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। क्या? तो They are good conductor. हाँ, Listen. हाँ, तो मतलब कि उनका these metals are good conductor of. तो इनका एरिया से क्या रिलेशन इसका मतलब इनका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, अब कॉपर की रेसिस्टिविटी कितनी होती है वो निकालने का तरीका हमने आपको बताया था। रेसिस्टिविटी, आप अभी रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी को समझ नहीं पाए। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, वो किस एलिमेंट का बना हुआ है। ठीक है, उसकी रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया क्रॉस सेक्शन पे। लेंथ और एरिया। रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन पे। रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, वो बना किसका है। तो किस मटेरियल में रेसिस्टेंस, जिस मटेरियल में रेसिस्टेंस जितना कम होगा उसकी रेसिस्टिविटी भी क्या होगी, उतनी कम होगी। अब रेसिस्टिविटी निकालते कैसे, मेजर कैसे करते हैं, उसके लिए हमको उसका रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कब रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जब वायर की लेंथ 1 मीटर हो और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तब हम
कॉपर की रेसिस्टिव, मान लीजिए हम एक कॉपर का वायर ले लेते हैं जिसका लेंथ 1 मीटर है, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस समय जो उसका रेसिस्टेंस होगा वही कॉपर की रेसिस्टिविटी कहलाएगी। सिल्वर की रेसिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी अलग होगी। एंड बिसाइड दिस at different temperatures these materials have different resistivities. सर नया तो फिर फॉर्मूले के हिसाब से टेम्परेचर का तो कुछ है ही नहीं फॉर्मूले में, और नेचर ऑफ द मेटल दोनों पे डिपेंड करती है। जैसे एक मान लीजिए कॉपर का वायर आपने ले लिया, ठीक है, कॉपर की एक अपनी रेसिस्टिविटी है, जो आपने जिस भी टेम्परेचर पे, सपोज आपने 25 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर की रेसिस्टिविटी मेजर किया, जो भी वैल्यू है, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फिर जो उसकी जो रेसिस्टिविटी होगी वो ओरिजिनल रेसिस्टिविटी से ज्यादा होगी, ठीक है। सो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर मोर विल बी रेसिस्टिविटी। ऐसा तो उसका फॉर्मूला होना चाहिए ना सर? है तो कहाँ है जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला? उसमें तो लेंथ और एरिया है, टेम्परेचर कहाँ है? कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी यही तो है फॉर्मूला। टेम्परेचर अलग है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने, अरे वो अलग नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी कितनी चेंज होगी वही तो है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। और फिर उसके ऊपर जो लिखा है वो वाला, वो तो रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन है, नॉर्मल एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ ठीक है, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी निकालनी है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। टेम्परेचर चेंज करने के बाद रेसिस्टिविटी कितनी चेंज हो जाएगी उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ρ2 = ρ1 1 + अल्फा T2 - T1 वाला। ठीक है। Am I able to make your doubt clear? Yes. Good. So, in case of alloys like nichrome, nichrome is an alloy which is made up of nickel, chromium, manganese and iron. There are 4 elements, 4 metals. कौन-कौन से हैं? Nickel, chromium, manganese and iron in nichrome. ठीक है। Manganese. Manganese is an alloy made up of copper, manganese and nickel. Similarly, constantan. Constantan is an alloy of copper and nickel, also called eureka. Resistivity is more than that of constituent metals. मतलब in case of alloys, the value of resistivity is greater than that of the individual metals present inside it. ठीक है। निक्रोम की रेसिस्टिविटी निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन सबसे ज्यादा होगी। सिमिलरली मैग्नेनिन की जो रेसिस्टिविटी होगी वो कॉपर से भी ज्यादा होगी, मैंगनीज से भी ज्यादा होगी, निकल से भी ज्यादा होगी। जो एलॉयज होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट मेटल से ज्यादा होती है। इसलिए एलॉयज आर यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग डिवाइसेस, ठीक है, लाइक ओवन, ये सब बनाने के लिए, टोस्टर, ये सब किससे बनाए जाते हैं? दे आर मेड फ्रॉम एलॉयज लाइक निक्रोम। ठीक है, क्यों? क्योंकि एलॉइंग करने से रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है, और जब रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो एलॉयज की रेसिस्टिविटी का रेंज क्या है? 44 × 10⁻⁸ to 100 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक, ये वैल्यूज आप याद कर लेना। नाउ व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? Those materials which possess greater resistivity of the order 3 × 10⁻³ ओम मीटर। मतलब सेमीकंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा होती है। कंडक्टर की कितनी है? इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸, जबकि इसकी कितनी? इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ 10⁻³ is much larger than 10⁻⁸। So the resistivity of semiconductor is much larger than that of conductors, and it is of the order 3 × 10⁻³ ohm meter. Okay, some examples of semiconductors are germanium and silicon. Now what are insulators? They have very high resistivity of order of 10⁻12 ohm meter. सेमीकंडक्टर से भी ज्यादा होती है इनकी रेसिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टर से तो बहुत ज्यादा है, सेमीकंडक्टर से भी ज्यादा है। तो इंसुलेटर्स हैव रेसिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर 10⁻12 ohm meter to 10⁻17 ohm meter. Example,
mica, rubber, glass, plastic, etc. These materials are insulators. So greater the value of resistivity, lesser will be the conductivity. That means less amount of current will flow through the conductor and better insulators they will be. Clear? सर कल आपने क्या बताया था, जर्मेनियम और सिलिकॉन कहाँ पे यूज होते हैं, कुछ बताया था ना परसों? मोबाइल की चिप में, मोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। मोबाइल की चिप, कंप्यूटर की चिप में, इन सब में, ताकि इनकी हीटिंग कम से कम हो। इसलिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सर होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितने होते हैं सब में इनका यूज होता है। इनकी चिप्स बनाने में, इनके आईसी बनाने में, आईसी सर्किट जो लगता है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको बनाने में यूज होता है। इसलिए टू अवॉइड द हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, पहले इनकी रेसिस्टिविटी ज्यादा रहती है, रेसिस्टेंस ज्यादा रहता है। जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका फिर रेसिस्टिविटी बहुत कम हो जाती है, स्टार्ट कंडक्टिंग करंट विदाउट हीटिंग। ओके, तो प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सर अब कुछ Now, पूछो ना। combination of resistance है, अब कुछ पूछो। डाउट्स, आस्क योर डाउट। मैं नहीं पूछूं? नहीं नहीं, आप पूछो। क्वेश्चन। मतलब थोड़ी नींद आ रही है तो क्वेश्चन आई आस्क, डोंट वरी। मजा आएगा। ओ भाई, नींद आई सेंड ए गूगल फॉर्म। अभी आगे चलो थोड़ा सा, उसके पूछने लायक ज्यादा पूछने लायक मटेरियल जो चैप्टर में आ जाएगा, देन आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर इज combination of resistors. If a number of resistors are connected, then what will be the equivalent or resultant resistance? एक सर्किट में मान लीजिए बल्ब भी लगा है, ट्यूबलाइट भी लगी है, कंप्यूटर भी चल रहा है, ये सब लगा है, तो इन सब का कंबाइंड कितना होगा, इक्वल रेजिस्टेंस कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे? So combination of resistors, there are two ways of combining resistors. These are resistors in series and resistors in parallel. ठीक है, दो तरीके से कंबाइन किए जाते हैं, सीरीज में कंबाइन किए जाते हैं रेसिस्टर्स और पैरेलल में कंबाइन किए जाते हैं। तो फर्स्ट वे इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। देखिए क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज if these are joined end to end and the same current flows through each one of them. इसका मतलब in series combination there is only single path for electric current to flow. If there happens to be more than one path for electric current to flow, then it will become parallel combination. In series combination, current can flow only in one path, only in one direction. A number of resistors are said to be connected in series if these are joined end to end and there is single path for electric current to pass through them, when a potential difference is applied across the combination. Now, if R1, R2 and R3 equals three resistors connected in series, मान लीजिए तीन हैं, R1, R2 and R3, three resistors connected in series, V equals potential difference across the combination. And this V will be equal to the sum of potential difference across R1, R2 and R3, or V will be the total potential difference applied by the battery. Now V1, V2 and V3, they are the potential differences across R1, R2 and R3 respectively, and I equals current flowing through the combination. Then V equals, ये जो V है, बैटरी जो करंट सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई कर रही है, ये टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा, तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इंडिविजुअल वोल्टेज होगा उसका। तो V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ सी द सर्किट डायग्राम, थ्रू दिस सर्किट डायग्राम इट विल बिकम मोर क्लियर। हियर सर ये स्लाइड लोड नहीं होती। ठीक है, हाँ, हो गई। अब देखिए यहाँ स्लाइड आ गई। हाँ सर अभी आ गई। ओके, नाउ आप देखिए डायग्राम। तो हियर देयर आर थ्री रेसिस्टर्स, वन इज R1,
another is R2 and another is R3, R4, यहाँ 4 हो गए, ठीक है, हम 3 भी ले सकते थे। अब इसमें देखिए एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब फर्स्ट रेसिस्टर का राइट हैंड सेकेंड रेसिस्टर के लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड है। सिमिलरली सेकेंड रेसिस्टर का राइट हैंड थर्ड के लेफ्ट से कनेक्टेड है, ठीक है, थर्ड का राइट हैंड फोर्थ के लेफ्ट से कनेक्टेड है, लाइक दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन। अब इसमें देखिए व्हेन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पहले पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का, हाँ पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे जहां मेरा कर्सर जा रहा है ऐसे करंट फ्लो होगी and it will pass through R1 then R2 then R3 then R4 and then it will come back to negative terminal. So there is single आदि। अगर R1 बहुत ज्यादा हुआ फिर R2 भी ज्यादा हुआ तो वो पहुंचेगा ही नहीं R4 तक। तो पोटेंशियल बेटा उसके अकॉर्डिंग जब पोटेंशियल डिफरेंस भी तो चेंज हो जाएगा, V1 V2 V3 V4 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। कैसे? ठीक है ना, क्यों V इक्वल्स IR होता है ना, तो अगर आप R1 बढ़ाओगे करंट को कांस्टेंट रखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। वोल्टमीटर विल स्टार्ट शोइंग डिफरेंट। यस, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज मेजर्ड अक्रॉस R1 R2 R3। यहाँ पे वोल्टमीटर लगाएंगे, R1 के अक्रॉस ऐसे वोल्टमीटर लगाएंगे, R2 के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाएंगे, R3 के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाएंगे, और उन्हीं की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है V1 V2 एंड V3। ठीक है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो फिर करंट फ्लो होगा। अरे दो क्वांटिटी चेंज, एक को कांस्टेंट रखने के लिए दो क्वांटिटी चेंज हो रही है, R चेंज हो रहा है V हो रहा है, तो उसमें क्या है? अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा, I विल रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ से हमने क्या निकाला, R1 से वोल्टेज निकाल लिया V1, R2 से वोल्टेज निकाल लिया V2, R3 से वोल्टेज निकाल लिया V3। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल्स IR। तो V1 इक्वल्स कितना हो जाएगा, IR1, V2 कितना हो जाएगा, IR2, V3 कितना हो जाएगा, IR3, यहाँ पे V2 लिखा है, V3 इक्वल्स IR3। नाउ अब इन सब में से हम क्या करें, I को कांस्टेंट निकाल लें, क्या हो जाएगा, V इक्वल्स I कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और V इक्वल्स I RS। RS मीन्स it's not rupees, here RS stands for equivalent resistance in series combination। S मतलब सीरीज, equivalent और resultant resistance in series combination। तो V इक्वल्स IRS, तो RS इक्वल्स कितना हो जाएगा, V इक्वल्स IRS पर, और IRS is equal to RS will be equal to R1 plus R2 plus R3। देखो IRS लिखा है, यहाँ V है, तो V की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वैल्यूज पुट कर दो, इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, I कांस्टेंट रहेगा, हटा इधर से I को हटा दिया, क्या बचा, RS इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन देख लो, उसके बाद आपकी क्लास खत्म होगी। ठीक है, नोट सर डाउट है, एंड रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस। हाँ बोलो सर इसमें जो करंट है सर वो कांस्टेंट क्यों है? क्या, इसमें करंट को कांस्टेंट क्यों लिया है जब रजिस्टर से? करंट इसलिए कांस्टेंट है, करंट का फ्लो होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर रास्ते एक से अधिक हो जाए करंट को फ्लो करने के लिए, तब उसको I1 I2 I3 बोलेंगे। सर जहाँ पे पॉइंट ए है R1 से पहले, वहां से हम 3 कॉम्बिनेशन कर दें, एक कॉम्बिनेशन इधर से ऐसे कर दें, एक कॉम्बिनेशन ऊपर कर दें। नाउ द करंट विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, I1 I2 एंड I3। इधर सेम पाथ है इसलिए उसको हम I ही बोलेंगे। सर करंट को रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? करंट को रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझिए, ये जो R1 R2 एंड R3 है, ये एक्चुअली R1 R2 और R3 सीरीज
कॉम्बिनेशन में नहीं रह जाते, ठीक है। क्यों? ये सब मिलके आरएस बन जाते हैं। आप इसको ज्वाइन करके सिंगल लार्ज रेसिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक, जैसे R1 है, सपोज इसमें कितने फोल्ड हैं, देखिए 1 2 कर्व्स कितने हैं, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो मतलब 3 3 3 कर्व्स वाले, मतलब आप इसको लार्ज बना के एक 9 कर्व्स वाला एक रेसिस्टेंस बना सकते हैं, दैट विल बी RS। एक्चुअल में हम R1 R2 R3 दिखा रहे हैं, इन रियलिटी R1 R2 and R3 becomes a single large resistance which is known as RS, इसलिए करंट डिवाइड नहीं होती। समझ में आया? ओके सर। Okay, sir. Whose question was this? सर यश। Can you tell your name? Yes, very good question. ठीक है, अभी मेरी बात समझ में आई आपको? ये R1 R2 R3 जो आपने लिखा है, एक्चुअली दे आर नॉट सेपरेटेड, व्हेन दे आर ज्वाइंड इन सीरीज they come in contact and they start behaving like a single large resistor, and the resistance of that single large resistor will be equal to RS. Clear? यस सर। Yes. Yes, sir. Now suppose if n resistors of resistance R are connected in series, अब मान लीजिए जितने भी रेसिस्टर R1 R2 और R3 लिखे हैं हमने, सबकी वैल्यू सेम है, तो हम उसको R1 R2 R3 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, R R R। So if n resistors of same resistance R are connected in series, then equivalent resistance RS will be equal to NR, n times R। क्लियर? क्योंकि सभी R को हम प्लस कर देंगे तो वो n times R हो जाएगा। Now when a number of resistances are connected in series, the resultant resistance RS is equal to the sum of individual resistance, ये तो ठीक है, आपको समझ में आ गया, and is greater than any individual resistance. This is very important line, means RS is always greater than value resistance of individual resistance. किसी इंडिविजुअल रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन जो RS होगा वो सभी रेसिस्टर्स इंडिविजुअल रेसिस्टर्स के इक्विवेलेंट के इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज्यादा होगा। RS will have larger value than any of the individual resistors. Clear? Yes, sir. So I think the time says that our time is over. So I am coming back to meet, and now I am going to stop once more. Attendance. Okay, so now I am going to stop presenting. Okay, I will start presenting. Yes, any doubt? सर मुझे एक अलग से डाउट था। हाँ जी। सर मुझे कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्टमीटर, और उसे मतलब एक तरह से निकालता है, चार अपना जो सेल पे बैठी है वो मेंटेन करता है, मैनेज करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किसके कारण? बेटा योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सर मैं पूछ रही हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अनुष्का, वोल्टमीटर मेजर करेगा। यस सर। हाँ, वोल्टमीटर विल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किससे होता है? सेल से, तो बैटरी या सेल जो पावर की सोर्स है उससे। आपको मेरी पहली क्लास लगता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय बैटरी, लेकिन जब वो रेसिस्टर से पास होता है, देयर इज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, आइदर इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी कोई, जैसे मान लीजिए करंट फ्लो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस इज सप्लाइड बाय बैटरी, जब वो रेसिस्टर से पास होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, रेसिस्टर देयर विल बी ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप होगा, दैट इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। अनुष्का, यस सर, आ गया सर। ये फर्स्ट क्लास में बताया था, आप आ गया? ओके, सो नाउ एक सेकंड यू वेट, सेंड कर देता हूँ मैं इसको।
सर अब कुछ पूछ लो, मतलब रिवीजन। If you want to ask any question, you can ask. सर कोई न्यूमेरिकल पूछ लो। हाँ नहीं अभी न्यूमेरिकल अभी मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, अटेंडेंस रिकॉर्ड करके भेजना पड़ेगा मुझे, ठीक है। Okay, now you start leaving the class. Thank you, sir. Thank you, sir. Saram, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Saram, sir. Saram, sir. Sai Ram, Saram, sir. Sai Ram, Saram, sir. Sai Ram, Thank you, sir. Saram. Sai Ram beta. Thank you, sir. Sai Ram, Sai sir. Ram, Sai Ram, Saram, sir. Sai Ram beta. Okay, leave. Thank you, sir. Saram, sir. Welcome, welcome. किसी में होगी ना? Apply. कितना मैसेज किया था आज? सेव नहीं हुई। तो रीनेम करना पड़ेगा फाइल है, तो क्या इसके नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, इसको करना है बेटा तुम लॉगिन किया करो दूसरे करो, तुम्हारी अटेंडेंस साल नहीं लग पाएंगे, चले लो बंद नहीं करो। फाइल नॉट को अरे यार उसमें नाम चेंज नहीं होगा, रुको बाद में डालना लॉग आउट कर दो, है ना, बोला था ना